Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of physics. And today we are back with the next lecture. It is the lecture number 16 from the third unit of our syllabus, which is magnetic effects of current and magnetism. And the topic which we are going to start is current loop as a magnetic dipole. So in this topic we will study that how a current carrying loop behaves like a magnetic dipole. Okay. करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डेरिवेशन के साथ कंप्लीट किया था अंडर द हेडिंग ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन था कि आपको करंट कैरिंग लूप से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था और आपने उस मैग्नेटिक फील्ड को उसकी एक्सियल लाइन पर फाइंड आउट किया था, आपको याद होगा। सो वी विल डायरेक्टली राइट दैट रिजल्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सियल लाइन। So we are having x, y, z axis. Arrow shows the positive direction of x, y, and z axis. This is the origin, and we have a current carrying coil placed in y z plane. बड़ा ये सेम डायग्राम है जो हमने पहले किया था, सेम डायग्राम। Okay, this is a current carrying coil placed in y z axis. X axis becomes the axial line of the current carrying loop. Okay, let the radius of this loop is a, and I want to know the magnetic field at a distance x from the center of the loop. At a distance x there is a point P, वहां पर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। The direction of the magnetic field is given by right hand thumb rule. Right hand thumb rule से कैसे आएगा? If your fingers of the right hand curls in the direction of flow of current, अभी flow of current is like this, okay, yz plane में इमेजिन करो, if it is flowing in yz plane, so it is like this, okay। मेरे साइड से देखने पर it is एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं फिंगर्स को राइट हैंड की कर्ल करूंगा तो थंब is towards positive direction of x axis। This is the direction of magnetic field at point P. And the value of magnetic field was given by the formula magnetic field is given by the formula mu naught upon 4 pi 2 pi a square, a is the radius of the coil, okay, I upon x square plus a square to the power 3 by 2 at a distance x. The formula was given by the magnitude of the magnetic field was given by this formula, okay, and the direction along the axis, along the axial line away from the coil if current is anti-clockwise. This point we will discuss later in this lecture today only. Now I want to find out the magnetic field at a point P which is very far away from the coil. अगर इस point P को आप बहुत दूर लेकर जाएंगे, suppose the point P moves at a very far away distance infinitely, then what is the magnetic field at that point? For a point
far away from the coil. For a point far away from the coil, this magnetic field at far away point, okay, at far away point, मैंने far लिख दिया यहाँ पर, at far away point, and what is this line? This is axial line ना, so I will also write axial. On the axial line at a very far point, okay, will be given by mu naught upon 4 pi 2 pi a square I upon, now since x is very large as compared to a is the radius of the coil, x is very large as compared to a, we can neglect a in front of x, so this becomes x cube. देखो x square to the power 3 by 2, a को तो नेगलेक्ट कर दिया है ना, a को नेगलेक्ट कर दो, x square to the power 3 by 2 means x cube, okay. And moreover this pi a square, what is this? Pi a square for a circular loop, this is the area of the loop na, for a circular loop this is the area of the loop, pi a square. I can write over here area a, 2 pi a for area, a is pi a square, so I will write 2 pi, I will write 2i and then a, 2ia upon x cube, where a is pi a square, area of current carrying loop, okay, x cube. So this is the formula in terms of area, and if you all remember I into a, ये हमने क्या माना था वहां पर, I into a is known as magnetic dipole moment, okay, this I into a. Can be written as small m I into a, where small m is equals to I into a, is magnetic dipole moment. Now this is the formula with me, equation number 1 I will write for it. This is the formula for magnetic field at a far away point on the axial line, at a far away point on the axial line in terms of magnetic dipole moment m, in terms of magnetic dipole moment m. So I am having equation number 1 for the magnetic field at a far away point on the axial line of the current carrying loop, okay. Now this current carrying loop, as we all know, behaves like a magnetic dipole. It behaves like a magnetic dipole. Magnetic dipole means it must be having two poles of the magnet, which are north pole and south pole, okay, because the formula is also written in the form of magnetic dipole moment m. M is the magnetic dipole moment, okay, small m is I into a, which is known as magnetic dipole moment. So it means this coil must be having north pole as well as south pole, okay. Now if the coil, if this current carrying loop is having north pole and south pole, then it can be easily known as a magnetic dipole. Now where is the north pole and where is the south pole of this current loop? इस current loop का north pole और south pole किधर होगा, इसको समझने के लिए students, now students, to understand that which phase is north pole and which phase is south pole for a current carrying loop. Suppose this is the current carrying loop in my hand, one of the phase is the north pole and the other phase is the south pole, okay. दो phases होते हैं इसके, एक phase जो आपको front facing phase है वो अगर north pole है तो automatically the other phase जो उसका दूसरा phase होगा वो south pole ही होगा. Now how to identify कि कौन सा phase इसका north pole होना है and कौन सा phase इसका south pole होना है. Suppose the current flowing is anti-clockwise, the direction of the current is anti-clockwise. So जिस phase से देखने पर direction of current आपको anti-clockwise नजर आएगा वो phase इसका north pole होता है. If the direction of current is anti-clockwise, then that phase is the north pole. और उसके दूसरे साइड वाला phase जब आप उसको देखोगे तो उधर आपको करंट ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज ही नजर आएगा. अगर इस साइड पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरी साइड पर करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, ठीक है.
तो दूसरा साइड इसका साउथ पोल हो जाएगा। ओके, सो द रूल इज कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो फेस नॉर्थ पोल होता है, और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर क्लॉकवाइज है तो वो फेस साउथ पोल होता है। और इस रूल को आप ऐसे याद रख सकते हो, सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग लूप एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये वाला पॉइंट जो आपको बोल रहा था ये आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर आप n को इस तरह से बनाएंगे और n के दोनों एंड्स पर एरो बनाएंगे, ये एरो इसके साथ आ रहा है और ये एरो इसी के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। दिस एरो इज पैरेलल टू दिस वन, दिस एरो इज पैरेलल टू दिस वन, ठीक। तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट के साथ n लिखा है तो नॉर्थ पोल होगा, और इसी कॉइल को आप दूसरे फेस की तरफ से जाकर देखोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि करंट अब क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। इसमें आप एक S बनाएंगे, S के दोनों एंड्स पर एरो बनाएंगे, this arrow is parallel to this one, this arrow is parallel to this one, so it means ये याद करने का तरीका है कि अगर क्लॉकवाइज करंट है तो S साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो N नॉर्थ पोल। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं, देखो नॉर्थ पोल से बाहर आएंगी लाइक दिस, नॉर्थ पोल से बाहर आ रही है। और रूल क्या था, अगर आपकी फिंगर राइट हैंड की करंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है, बाहर आ रही है नॉर्थ पोल। देखो इस लूप के लिए भी यही करा था आपने, करंट एंटी क्लॉकवाइज था, फिंगर्स कैसे कर्ल करा, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब वो बाहर आ रही थी, तो ये वाला फेस इसका नॉर्थ पोल है। ओके, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन अवे फ्रॉम द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल। नॉर्थ पोल की तरफ अगर आप फेसिंग है तो अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड अवे फ्रॉम द कॉइल हो गई ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अवे फ्रॉम द कॉइल, ठीक है। और अगर आप साउथ पोल को देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल के अंदर एंट्री लेती हैं, तो आप क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग टुवर्ड्स द साउथ पोल, मूविंग टुवर्ड्स द करंट लूप, फिर आप ये लिखोगे डायरेक्शन, इसलिए हमने यहां पर लिखा था मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द कॉइल। ओके, now apart from this we are going to compare this result with the result of electric field due to an electric dipole। इस रिजल्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट के साथ कंपेयर करने वाले हैं। ओके, now students we are going to compare this result of the magnetic field due to a magnetic dipole on far away point on an axial line with the result of electric field due to an electric dipole on a far away point on the axial line। अगर आप किसी को याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां लिख देता हूं, electric field due to electric dipole on a far away point on its axial line was given by this formula 2p upon x cube 1 upon 4 pi epsilon naught। This is my equation number 1a। okay, or we can write this as equation number 1b and this one as equation 1a। इसको 1a लिख लो, उसको 1b लिख लेते हैं। Now we can compare the two equations। This formula is analogous of this formula। If this is a formula for electric field due to an electric dipole on a far away point on its axial line, it means this is the formula for magnetic field due to a magnetic dipole। It means we can say that a current carrying loop is a magnetic dipole। We can say this। okay, this is what we have to prove, that current loop behaves like a magnetic dipole। We want to prove this, so this has been proved using this analogous theory। analogous theory बोलते हैं उसको कि आप एक टॉपिक को किसी दूसरे टॉपिक से कंपेयर करें और अगर सिमिलर रिजल्ट्स हैं तो आप अपना फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं फिर। ओके, सो यहां पर हम वही कर रहे हैं, अगर ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड देता है इलेक्ट्रिक डायपोल का ऑन अ फार अवे पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन, तो इट मींस ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड है ऑन अ फार अवे पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ मैग्नेटिक डायपोल। सो दिस कंफर्म्स दैट कि करंट लूप
is behaving like a magnetic dipole. This confirms that a current loop is behaving like a magnetic dipole, and it must be having two poles, that is north pole and south pole. और north pole south pole कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैंने आपको अभी बताया. ओके, कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर करंट का है जिस फेस पर, वो फेस नॉर्थ पोल है, और जिस फेस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट आता है वो फेस साउथ पोल माना जाता है. ओके, so comparing these equations 1a and 1b, comparing equation 1a and 1b, we can say that equation 1a is analogous मतलब similar to, analogous of equation 1b. तो आप ये कह सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है. P which is the electric dipole moment, उसके प्लेस पर M which can be written as magnetic dipole moment, which can be written as magnetic dipole moment होता है. P के प्लेस पर M होता है. ओके, और so that इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पर हम फिर फाइनली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं. ओके, ये एनालॉगस क्वांटिटीज हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन के प्लेस पर 1/4 पाई, और वी कैन से 4 पाई से 4 पाई हटा दो, 1/एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर म्यू नॉट. P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के प्लेस पर M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा. E इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेस पर B मैग्नेटिक फील्ड होगा. ओके, ये चीजें हमने यहां पर ऑब्जर्व की हैं इक्वेशन 1a और 1b से. ओके, सो ये तो हमने टॉपिक किया भी था पूरा ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ करंट कैरिंग लूप. लेकिन इक्वेटोरियल लाइन भी तो होता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन का भी एक रिजल्ट होता था. उसको कैसे कंपेयर करोगे? बट स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव डन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीटली, आपको याद होगा कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पर भी होता है और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर भी होता था. व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन? इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों पोल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था. वहां पर इक्वेटोरियल लाइन. यहां पर इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा, और क्या यहां पर भी इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा? अगर एनालॉगस है तो एनालॉगस की हेल्प से आप इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल. नाउ व्हाट विल बी इट्स इक्वेटोरियल लाइन? कोई भी ऐसी लाइन जो इसके डायमेट्रिकली लाइन हो जाएगी. कोई भी डायमीटर एक्सटेंडेड बोथ साइड्स, जैसे y एक्सिस इज द डायमीटर एक्सटेंडेड बोथ साइड्स, इधर भी उधर भी, या z एक्सिस इज द डायमीटर एक्सटेंडेड बोथ साइड्स, इधर भी और इधर भी. कोई भी डायमीटर जो एक्सटेंडेड बोथ द साइड्स होगा वो इसका इक्वेटोरियल लाइन ही होगा. ओके, और इक्वेटोरियल लाइन पर वेरी फार अवे पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम यूज करेंगे यही एनालॉगस वाली थ्योरी. सपोज यहां पर कोई फार अवे पॉइंट है, वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप. देन वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस एनालॉगस थ्योरी ओनली. फर्स्ट स्टूडेंट्स, you please copy down this and then we will proceed forward. So students, again, if you remember the electric field due to electric dipole on axial line at a far away point. Electric field this is the formula for electric field due to electric dipole on its equatorial line at a far away point. अगर आपको डायग्राम याद हो, this was a diagram for dipole और ये उसकी इक्वेटोरियल लाइन होती थी. इक्वेटोरियल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल, इक्वेटोरियल लाइन. ओके, इस लाइन पर कहीं भी बहुत दूर, ऊपर या नीचे, कहीं भी हो सकता है, फार अवे पॉइंट एट अ डिस्टेंस x. तो उस फार अवे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये हुआ करता था. दिस वाज द फॉर्मूला फॉर electric field. Okay, electric field was in a direction opposite to the direction of the dipole moment, और dipole moment से इसका डायरेक्शन अपोजिट होता था, अपोजिट टू p, p से अपोजिट होता था.
ओके, अब इस एनालॉगस थ्योरी के साथ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ पॉइंट वेरी फार अवे फ्रॉम द करंट लूप भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? E के प्लेस पर वी कैन राइट B, so I am going to write magnetic field due to magnetic dipole at a far away point on its equatorial line, on its equatorial line, on its equatorial line is given as B far away point पर, इक्वेटोरियल लाइन पर E की जगह B आ जाएगा। 1/4 पाई म्यू नॉट के प्लेस पर वी विल राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा। P के प्लेस पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के प्लेस पर वी कैन राइट M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन x क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current loop which can be considered as a magnetic dipole on its equatorial line at a far away point. Okay, and the direction again from the analogous theory opposite to the direction of dipole moment, opposite to the direction of magnetic dipole moment. Okay, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी आ गया। ओके, सो अभी आप इसको भी कॉपी करें, देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड। So now students, we are going to summarize the main content of this lecture today. Okay, x axis positive direction, y axis positive direction, z axis positive direction. This is origin, and I am having an electric dipole minus q charge plus q charge. Dipole moment, as we all know, is from negative to positive charge. Okay, so if I am having a point on the axial line at a very far distance from this, काफी दूरी पर एक पॉइंट है, यहां मान लो at a very far distance, the distance is x, then the value of electric field and the direction of electric field. The value of electric field at a far away point on the axial line is given as 1/4 pi epsilon naught 2p upon x cube. Okay, and the direction of electric field is parallel to the direction of dipole moment. This we all know. Dipole moment के direction वाले ही direction electric field का होता है axial line पर. Okay, also on the equatorial line, कोई भी लाइन वो होती है इक्वेटोरियल लाइन जो कि लाइन जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। यस, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर y एक्सिस भी हो सकता है और z एक्सिस भी हो सकता है और कोई लाइन भी हो सकती है इन द yz प्लेन ओनली। सपोज ये मेरा इक्वेटोरियल लाइन है और अगेन अ फार अवे पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज दिस, और इक्वेटोरियल लाइन पर फार अवे पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन x क्यूब, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एज वी ऑल नो इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल पॉइंट, इसके लिए डायरेक्शन होगा। ठीक है, similarly we have done today for a current loop which is considered as a magnetic dipole। करंट लूप को मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कंसीडर करते हैं और उसके लिए भी आपने ये चीजें आज एनालॉगस स्टडीज के थ्रू कैलकुलेट की है। मैग्नेटिक फील्ड एट अ फार अवे पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ फार अवे पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन फॉर मैग्नेटिक डाइपोल। उसको देखते हैं।
This is x-axis positive direction, y-axis positive direction, z-axis positive direction. This is origin, and suppose I am having a current loop in the yz plane, carrying current I as seen from the positive direction of the x-axis. It is anti-clockwise in direction. Current is anti-clockwise in direction, and let the radius of this current carrying loop is a. यहां पर a अगर आप मार्क करते थे तो a was half the dipole length. 2a dipole length होता था ना, a is half the dipole length. यहां पर a is the radius of the magnetic dipole या radius of the current loop. कह सकते हो half the diameter. a is half the diameter, ये कह सकते हो आप. यहां पर भी एक्सियल लाइन होगा, एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है सपोज, और वहां मेरे को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू which we have calculated today is given as B is equals to mu naught upon 4 pi in place of 1 upon 4 pi epsilon naught, 2 P के प्लेस पर M upon x cube. जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट होता है, ऐसे यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पैरेलल टू डायपोल मोमेंट होगा. द ओनली डिफरेंस इज वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है. एंड सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड एट अ फार अवे पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज mu naught upon 4 pi m upon x cube. m upon x cube ये फार अवे पॉइंट था एक्सियल का, और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. नाउ व्हिच इज द नॉर्थ पोल एंड व्हिच इज द साउथ पोल? ये अभी हमने आज की क्लास में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. अगर डायरेक्शन ऑफ करंट एज सीन फ्रॉम माय साइड इज एंटी क्लॉकवाइज, देन दिस फेस इज द नॉर्थ पोल. अभी ये नॉर्थ पोल है तो ये वाला साउथ पोल होगा. तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. Direction of electric dipole moment is from negative to positive, whereas the direction of magnetic dipole moment is from south to north. Always remember this. Okay. So इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आया, देखो पैरेलल. अगर ये इक्वेटोरियल लाइन क्या होगा? एक करंट लूप के लिए कोई भी डायमीटर जो बोथ साइड एक्सटेंड कर दिया जाए वो इसका इक्वेटोरियल लाइन होता है. मतलब any line passing through the center of the current loop in its plane, डायमीटर उसके प्लेन में होते हैं. तो y एक्सिस भी यहां पर इक्वेटोरियल लाइन है, z एक्सिस भी, या और कोई लाइन y z प्लेन में इक्वेटोरियल लाइन ही होगा. सपोज मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट यहां काफी दूर है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ओके, सो ये चीजें हमने अभी तक ऑब्जर्व की. अभी P को हम बोल रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. इसका डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ पोल, उसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, बट देयर इज डिफरेंस है. अभी यहां पर क्या डिफरेंस है देखो. इलेक्ट्रिक डायपोल इज कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स. Electric dipole is consist of two different particles जो इसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिनसे मिलकर ये बना है. टू डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स जिन्हें हम बोलते हैं मोनोपोल्स. और मोनोपोल्स क्या है? एक नेगेटिव चार्ज और दूसरा पॉजिटिव चार्ज. These are the monopoles. ये अलग अलग पार्टिकल्स हैं, इनको अलग अलग किया जा सकता है.
ठीक है, डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स, इनको आप अलग अलग कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, टू डिफरेंट नेचर्स ऑफ चार्ज, ओके। लेकिन एक मैग्नेटिक डायपोल में मोनोपोल्स आर नॉट फाउंड टू एग्जिस्ट, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ओके। यहां पर मैग्नेटिक डायपोल के लिए monopoles do not exist, this is very important point, magnetic dipole के लिए monopoles do not exist, okay, means अलग अलग पोल्स यहां पर नहीं होते, ठीक है, there is no concept of monopoles in magnetic dipole, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप डायपोल की बात करें, डायपोल का शेप क्या होता है, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, देखो सिर्फ एक लाइन ही ज्वाइन कर सकती है इनको, तो इट मींस डायपोल का शेप लीनियर होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का शेप, इलेक्ट्रिक डायपोल इज लीनियर, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल इट इज सर्कुलर। अब एक फॉर्मूले पे ध्यान देना है, P का फॉर्मूला क्या होता था, Q इंटू 2A, यहां पर M का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, M किसकी जगह पर लिखा था, I into A, and what is A? A is area of the current loop का area. Now for circle this is pi square, if this is a square तो इसका एरिया स्क्वायर वाला एरिया हो जाएगा, इट कैन बी सम अदर पॉलीगन, तो पॉलीगन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। सो शेप ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, शेप ऑफ मैग्नेटिक डायपोल कैन बी सर्कुलर, स्क्वायर, या कोई और पॉलीगन। शेप ऑफ मैग्नेटिक डायपोल कुछ भी हो सकता है, सर्कल, स्क्वायर या कोई और पॉलीगन, ठीक है, लेकिन इन सबका एरिया इज डिनोटेड बाय a। अगर सर्कल है तो a इज पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे a के लिए, पॉलीगन है तो उस गिवन पॉलीगन का एरिया का फॉर्मूला a के प्लेस पर लगाएंगे, ओके। तो इट मींस शेप ऑफ मैग्नेटिक डायपोल कैन बी एनी, सिर्फ मैग्नेटिक डायपोल एरिया पर डिपेंड करता है, ओके, एरिया पर डिपेंड करता है। आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लेंथ पर डिपेंड करता है क्योंकि उसका शेप सिर्फ लीनियर है, ठीक है। ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, ओके, ये भी एक डिफरेंस है, ठीक। सो द मेन डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल, आप इनको कॉपी करें और इसके साथ साथ ये दोनों डायग्राम्स भी कॉपी कर लें, ठीक है। एक तरीके से ये आज के लेक्चर की समराइज्ड स्टडी है हमारी, इसको जरूर कॉपी करना है। और पॉइंट इंपॉर्टेंट जो यहां पर आपने सीखा है वो है मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, कहां पर, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मार्क दिस पॉइंट। So student, we are about to finish the lecture today. So once again I will make you remember that कि अगर आप इस फॉर्मूले को बोलते हैं, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P होता है, Q into 2A on the axial line, and this is for the electric field due to electric dipole on the equatorial line. So आप इन फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले बिल्कुल उसके एनालॉगस हैं, ये एनालॉगस स्टडी किया आज हमने। So this is the formula for magnetic field due to a magnetic dipole. It means we can call this current loop as a magnetic dipole. इस current loop को आप magnetic dipole बुला सकते हैं, जिसके पास दो पोल्स हैं, लेकिन वो पोल्स अलग अलग नहीं दिए जा सकते, उन पोल्स को हम साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल बोलते हैं, ओके। और ये फॉर्मूला उस डायपोल की एक्सियल लाइन पर फार अवे पॉइंट के लिए है, एंड दिस फॉर्मूला उसी डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर फार अवे पॉइंट के लिए है, ओके। सो एक करंट लूप क्या है, एक करंट लूप एलिमेंट्री मैग्नेटिक एलिमेंट कहलाता है, करंट लूप इज एलिमेंट्री मैग्नेटिक एलिमेंट, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है आज का। करंट लूप इज एलिमेंट्री, व्हाई इट इज एलिमेंट्री, इसका आंसर हो चुका है अभी तक हमारे लेक्चर में। करंट लूप इज एलिमेंट्री मैग्नेटिक एलिमेंट, Why we are calling it as elementary? Elementary मतलब जिसको और ब्रेक ना किया जा सके और सिंप्लीफाई ना किया जा सके।
क्यों? देखो, इसलिए इसको एलिमेंट्री बोला है क्योंकि अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो दो पोल्स हैं, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। मोनोपोल्स आर नॉट फाउंड टू एग्जिस्ट फॉर अ मैग्नेटिक डायपोल। अगर आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई और ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते तो फिर ये एलिमेंट्री होगा ना, तो आप कहेंगे करंट लूप इज एलिमेंट्री मैग्नेटिक एलिमेंट। ओके, ये यहां से आप प्रूव करते हैं इस चीज को। And now students, we are about to finish this lecture, but before finishing, one important point to be discussed with you is that कि suggestion of Ampere क्या है? Suggestion of Ampere, Ampere is the name of a scientist ना, ये एक साइंटिस्ट था Ampere। Suggestion of Ampere, Ampere ने क्या सजेस्ट किया था? ये कहा जाता है कि Ampere suggested that all magnetism is due to सर्कुलेटिंग करंट्स। सारा मैग्नेटिज्म सर्कुलेटिंग करंट की वजह से ही होता है, ये एम्पियर ने सजेस्ट किया था। और ये उसने क्यों सजेस्ट किया था? व्हाई ही सजेस्टेड दिस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई ही सजेस्टेड दिस कि दैट ऑल मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स। देखो, सर्कुलेटिंग करंट का क्या मतलब है? ये सजेस्ट किया था उसने, ऑल मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू circulating currents, but why he suggested this? Reason क्या है इसका? Reason is related to the study of current loop only. Current loop मतलब जो करंट सर्कल में घूम रहे हैं या एक लूप में घूम रहे हैं, whichever लूप में भी, ओके, क्लोज लूप होना चाहिए, तो उनको बोलते हैं सर्कुलेटिंग करंट्स। ठीक है, अब देखो, क्योंकि सर्कुलर करंट कैरिंग लूप्स को आपने देखा, they behave like magnetic dipole at large distances, और दूसरा पॉइंट, they also experience torque सिमिलर टू मैग्नेटिक नीडल्स। जैसे मैग्नेटिक नीडल एक्सपीरियंस करती है बिल्कुल वैसे ही। याद है ना, करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, और उस टॉर्क से वो रोटेट करता है, सो ये टॉर्क भी एक्सपीरियंस करते हैं। सो these 2 points led Ampere to suggest that all magnetism is due to circular currents। ये इसका आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। ठीक है, और ये कुछ हद तक ठीक भी बात है जो एम्पियर ने बोली है, अभी तक तो ठीक है। क्यों? बिकॉज दिस सीम्स टू बी ट्रू। दिस मतलब क्या? जो एम्पियर ने सजेस्ट किया था वो लगभग ठीक है, सही लगता है बिल्कुल। क्यों? बिकॉज टिल नाउ, आज तक मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर नॉन टू एग्जिस्ट। अभी तक तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, इट मींस द सोर्स ऑफ ऑल मैग्नेटिज्म कैन बी कंसीडर्ड टू बी सर्कुलेटिंग करंट्स। बट कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ऐसे, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं अभी भी ऐसे। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो? प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनके पास अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, अपनी ओरिजिनल इंट्रिंसिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड विच आर नॉट एट्रीब्यूटेड टू सर्कुलेटिंग करंट्स, और वो सर्कुलेटिंग करंट्स की वजह से नहीं होती, नॉट ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स। ठीक है, प्रोटॉन्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उनका रिलेशन सर्कुलेटिंग करंट से कहीं तक भी नहीं, आज तक भी पता चला है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो हैं, अपनी अपनी इंट्रिंसिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लेकिन उनका करंट से, सर्कुलेटिंग करंट से कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए कहा है दिस सीम्स टू बी ट्रू, अदरवाइज ये कहा जाता दिस इज एग्जैक्टली ट्रू।
अदरवाइज ये कहा जाता है, ठीक है। तो सिर्फ इन्हीं दोनों पार्टिकल्स की वजह से बोला है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वजह से, कि दिस सीम्स टू बी ट्रू, ये अगर ट्रू लगता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये याद रखिएगा। ओके, मतलब नॉर्थ पोल अलग हो जाए और साउथ पोल अलग हो जाए, दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर टुडे। आज के लेक्चर की बेसिक थीम ये थी कि आपको करंट कैरिंग लूप जो है उसको स्टडी करना था एज अ मैग्नेटिक डायपोल, कि वो मैग्नेटिक डायपोल ही है। और फार अवे पॉइंट्स पर एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर उसके भी फॉर्मूले ऐसे ही हैं जैसे फार अवे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्मूले हुआ करते हैं, एनालॉगस स्टडीज है, ठीक है। लेकिन इनके दोनों के डायपोल में और डायपोल मोमेंट्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक। क्या डिफरेंसेस हैं वो हमने डिस्कस किए, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल में मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसमें रिएक्ट नहीं करते, दिस इज द मेजर डिफरेंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये टॉपिक आपको आज के समझ में आए होंगे। इस टॉपिक को अलग से हमारे बोर्ड ने मेंशन किया है कि हमें स्टडी करना है अलग से करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, सो दैट्स व्हाई वी हैव फॉर्मुलेटेड इट इन अ डिफरेंट लेक्चर। ओके, सो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर टुडे। सो विश टू सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।